Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is class 11th, subject economics. Today's our topic is Ogive, which is also known as cumulative frequency curve. Ogive or cumulative frequency curve. How is this Ogive or cumulative frequency curve constructed? Ogive or cumulative frequency curve is the curve which is constructed by plotting cumulative frequencies cumulative frequency data on the graph paper in the form of a smooth curve. Now what is Ogive? How is Ogive or cumulative frequency curve constructed? First of all, we should know it is the curve which is constructed by plotting cumulative frequency data on the graph paper in the form of a smooth curve. Now remember, Ogive may be constructed by two ways. Ogive may be constructed by two ways or by two methods. There are two methods. One method is less than method, and the second is more than method. Ogive may be constructed by two ways, or there are two ways to construct Ogive. One is less than method, another is more than method. In less than, frequencies are added. Now, in less than, frequencies are added starting from the upper limit of the first class interval of the frequency distribution On the other hand, more than method or we can say, or the other hand, more than Ogive may be constructed frequencies are added from the lower limit of first class interval of the frequency distribution. Now, less than method and more than method. In less than method, frequencies are added starting from the upper limit of the first class interval of the frequency distribution. On the other hand, more than method,
frequencies are added from the lower limit of the first class interval of the frequency distribution. Less than method में upper limit and less than method में frequencies are added starting from the upper limit of first class interval. Frequencies are added starting from the upper limit of the first class interval of the frequency distribution. On the other hand, more than method or more than augur method is constructed when frequencies are added from the lower limit of फर्स्ट क्लास इंटरवल ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पर अपर लिमिट है और यहाँ पर लोअर लिमिट है. अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं. यहाँ पर एक मार्क्स 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40. यहाँ पर एक क्वेश्चन है. यहाँ पर एक टेबल हम बनाएंगे. ये एक टेबल है. यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. ये कॉलम यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये वाला कॉलम 0 to 5 4, 5 to 10 6, 10 to 15 10, फिर है 15 to 20 10, 20 to 25, यह है 25, 25 20 30, यह है 22, फिर है 30 to 35 18, फिर है 35 to 40, ये है 5. से ये हमारे पास एक क्वेश्चन है. यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं. यह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 0 to 5 4, 5 to 10 6, 10 to 15 10, 15 to 20 10, 20 to 25, 25 स्टूडेंट्स हैं. 25 to 30 22 है. 30 to 35 18 है. 35 to 45 स्टूडेंट्स है. अब हम देखते हैं कि हम कैसे एक ऑग्यू कंस्ट्रक्ट करेंगे. इसके लिए हमें क्या करना है? ऑग्यू बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर हम पहले एक टेबल बनाएंगे. ये हमने क्वेश्चन बनाया. अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका है, पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप. लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप यहाँ पर है. यह लिखेंगे हम यहाँ लेस देन टाइप पहले. ये है मार्क्स. फिर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ देख लीजिए आप, ये मार्क्स है. यहाँ पर लिखेंगे हम लेस देन 5, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40. 1 2 3 4 5 6 7 8. आपको याद रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8. अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 0 to 5 है.
यहाँ पर आप देख लीजिए इसको, ये क्यूमुलेटिव 0 to 5 है 4, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, लेकिन लेस देन मेथड से यहाँ पर हम अपर लिमिट हमने ले लिया, यह है अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, इसका हमने अपर लिमिट ले लिया। अब यहाँ से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको बनाएंगे थ्रू लेस देन मेथड। अब देखिए लेस देन 5 कितने स्टूडेंट्स हैं, लेस देन 5 4 स्टूडेंट्स हैं, ये 4 है, ठीक, ये आ गया 4। अब देखिए लेस देन 10 कितने हैं, एक 6 है, दूसरा 4 है, 6 + 4 या 4 + 6 = 10। लेस देन 15 कितने हैं, एक ये हो गई 10 + 10, ये हो गई 20, 10 + 10 हो गई 20। फिर है लेस देन 20, एक तो ये हो गई 20 प्लस एक, फिर है 10, लेस देन 20, फिर 20 + 10, ये हो गई 30, ये हो गए 30। अब आप देखिए लेस देन 25, एक तो ये हो गए 30 + 25, 30 + 25, इट इज़ 55। फिर है लेस देन 30, एक है 55 + 22, 55 + 22, दैट इज़ 77। लेस देन 35, एक है 77 प्लस यहाँ पर 18 है, 77 + 18, ये हो गए 95। फिर है लेस देन 40, एक ये हो गए 95 + 5, ये हो गए 100, ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिली। जब हमने लेस देन मेथड इस्तेमाल किया तो हमें मिला 4, 10, 20, 30, 55, 77, 95 एंड 100। ये हो गया एक कॉलम इसका। अब दूसरा कॉलम हम बनाएंगे मोर देन क्यूमुलेटिव, हम यहीं बनाएंगे। मोर देन क्यूमुलेटिव में यहाँ पर हम लिखेंगे लेस देन, अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, ऑन द अदर हैंड मोर देन ओबी मेथड फ्रीक्वेंसी, ऑन द अदर हैंड ये है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और एडिड फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, यहाँ पर लोअर लिमिट हमें देखना है ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, दैट इज 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मार्क्स लिखेंगे हम, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर मोर देन हम लिखेंगे ऐसे, मोर देन 0 कितने हैं, मोर देन 0। अब हम ये देखेंगे यहाँ पर मोर देन 0 जब हम देखते हैं ये है 100। अब इसी को आप उल्टा कीजिए, अब ये है, ये मोर देन 0 है, यहाँ से हमने 0 to 5 0 से स्टार्ट किया था। जब हमने ये इस यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया, 0 to 40, हम जब इसको टोटल करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, इसका जो टोटल आ गया ये 100। अब हम यहाँ देखेंगे मोर देन 0 जो है दैट इज़ 100, मोर देन 0 इज़ 100। फिर है मोर देन 5,
मोर देन 5 कितने हैं? 100 माइनस 5 95 95 नहीं 5 नहीं है, मोर देन ये 4 है, 96 है, ये है 96। मोर देन 5 4 है, 100 माइनस 4 इज 96। फिर लिखेंगे हम मोर देन 10, ये है मोर देन 10। 96 में से हम करेंगे ये है 6 मोर देन 10, ये है 6। 96 माइनस 6 इज इक्वल टू 90। फिर लिखेंगे हम मोर देन 15, मोर देन 15 कितने आ गए? मोर देन 15 है हमारे पास 90 माइनस 10 ये हो गए 80, ये हो गए 80। फिर है मोर देन 20, मोर देन 20 कितने हैं? 80 माइनस मोर देन 20 80 मोर देन 15, हमने यहाँ पर 10 लिखा, मोर देन 20 80 माइनस यहाँ पर हमने 0, फिर लिखा हमने 5, फिर लिखा हमने 10, फिर लिखा हमने 15, मोर देन 20, यह है 80 माइनस 10, यह है 70, 80 माइनस 10 70। फिर है मोर देन 20, मोर देन 25, ये है 70 माइनस 25, ये बन गया हमें 55, ये 54 बनेगा या 55 बनेगा? 70 माइनस 25 ये हो गए, हाँ ये बन गया 45, ये बन गया 45, ये है 45। फिर है मोर देन 30, 45 माइनस 22, ये है 23। मोर देन 35 कितने बन गए? 23 माइनस 18, ये हो गया 5, ये हो गया 5। और मोर देन 40 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये देख लीजिए आप, ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिली, ये है लेस देन और ये है मोर देन। लेस देन हमें मिला 4, 10, 20, 30, 55, 77, 95, 100। और मोर देन से हमें मिला 100, 96, 90, फिर है 80, फिर है 70, फिर है 45, फिर है 23, फिर है 5, फिर है 0। आप देख लीजिए हम ये ऑडियो कैसे बनाएंगे हम। यही मटेरियल है हमारे पास। अब इसी मटेरियल को आप प्लॉट करना है हमें। ये है हमारे पास एक ग्राफ पेपर होगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पर हम लेते हैं मार्क्स, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। यहाँ से हमने मार्क्स ले लिया और यहाँ से हमने लिया नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं, यहाँ से हम शुरू करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ग्राफ पेपर आप उसमें आप खुद बनाएंगे, हम इस वक्त फ्री हैंड बनाएंगे। इसको नंबर दे दीजिए, यह 0 5 10 15 20 25 30 35 फिर है 40। अब आगे चल लीजिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बाय 20। यहाँ पर कॉलम कम ही बनाएंगे हम, 20 40 80 60 80 एंड 100। ये वाला ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए और ये वाला ले लीजिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। एक पहले हमें बनाना है लेस देन ऑग्यू। लेस देन ऑग्यू हम बनाएंगे, यहाँ से हम लिखेंगे लेस देन ऑग्यू। लेस देन ऑग्यू कैसे बनेगी, अब देखिए, जहाँ पर पहले हम देखते हैं लेस देन 5, ये है मार्क्स 5, और यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 4 हैं। 4 इसके बराबर आ जाएगा, समझो कि यहाँ आ जाएगा 4, ये वाला पॉइंट 4 होगा। फिर 10 का है 10 इज इक्वल टू 10, ये है ये वाला 20 जो है, इस 20 को हम आगे ले जाएंगे। यहाँ पर ये होगा 4, ये होगा 10 और ये है 20। ये वाला 20 है, ये वाला 20 है, ये होगा 10, ये होगा 10। 15 पर है 20, 15 पर है 20, 20 हो गया ये, 20 हो गया ये 20। फिर 20 पर कितना है, 20 पर है 30, 20 पर है 30, 20 पर है 30 ये आ जाएगा 40 के नीचे, ये आ जाएगा हमें 20। 25 के पर कितना है, 25 पर है 55, 25 पर है 55, ये है 40 50, ये हो गया 55, तकरीबन ये है 55, ये है 55, ये वाला 55 ये पॉइंट। 30 पर कितना है, 30 पर है 77, 30 पर है 77, 30 पर है 77, 77 ये आ जाएगा, तकरीबन ये आ जाएगा ये पॉइंट 77, ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला नहीं है, ये वाला आ जाएगा। फिर है 40 पर, 40 पर है 35 पर है 35 पर है 95, 30 पर है 95, 30 पर है 35 पर है 95, 95 ये होगा, और 40 पर 100 है, 40 पर 100 है, 40 पर 100 है। अब ये इनको हम ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट्स ज्वाइन करो, ज्वाइन करते जाओ, ज्वाइन करते जाओ, ज्वाइन करते जाओ, ज्वाइन करते जाओ, ये हमारी बन गई एक करो। ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, इस करो को हम कहते हैं इट इज़ लेस देन ऑग्यू करो, लेस देन ऑग्यू या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करो, ये है लेस देन। अब हम देखते हैं मोर देन हम कैसे बनाएंगे। ऐसे ही हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वैल्यू इसी तरह दे दीजिए। यहाँ पर है मार्क्स, यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 एंड 4, ये है 40,
फिर हमने लगाया ये 20, 40, 60, 80 एंड 100। आप देख लीजिए। अब यहाँ पर हमें बनाना है मोर देन ऑग्यू। मोर देन ऑग्यू हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास रिज़ल्ट आगे दिया हुआ है। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 पर हम स्टार्ट करेंगे। मोर देन 0 ये है 100, ये है 100। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 0, ये है 1 नहीं, 1 नहीं है, ये 5 है, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। ये है 40। अब आप देख लीजिए कि मोर देन 0 ये है 100, फिर है मोर देन 5, मोर देन 5 95 है, मोर देन 5 95, ये होगा 95। मोर देन 10, मोर देन 5 96 है, 96 है। मोर देन 10 ये है 90, ये है 90, मोर देन 10 90, ये हो गया 90। मोर देन 15 80 है, मोर देन 15, मोर देन 15 ये वाला हो गया 18, 80, ये वाला हो गया 80। मोर देन 20 70 है, मोर देन 20 70 है, 70 यहाँ आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा यहाँ पर। मोर देन 25 ये है 45, 45। मोर देन 20, मोर देन 20, मोर देन 20 70 है, मोर देन 20 70 है, 70 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर। मोर देन 25, मोर देन 20, मोर देन 20 70 है, मोर देन 20 70, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट भी नहीं है। मोर देन 15, मोर देन 20 70 है, मोर देन 25 45 है, मोर देन 25 45 है, 45 ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर 45। मोर देन 30 23 है, ये हो गया 23। मोर देन 30 है 20, ये हो गया 20, ये हो गया 23, ये हो गया 23। मोर देन 35, मोर देन 35 5 है, मोर देन 35 5 है, 5 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मोर देन 40 0 है, मोर देन 40 0 है। अब इनको ज्वाइन कीजिए, अब इनको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करेंगे ऐसे हम, यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ऐसे 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 और ऐसे। ये ऑग्यू जो बन गया, इसको कहते हैं हम, यहाँ पर हम नंबर दे देंगे। ये है 96, फिर है 90, फिर है 80, फिर है 70, फिर है 45, फिर है 23, फिर है 5, फिर है 0। यहाँ पर भी हम नंबर देंगे। ये है 4, ये है 10, ये है 20, ये है 30, ये वाला है 55, ये वाला है 77, ये वाला है 77, ये वाला है 95 और ये वाला है 100। ये दो बन गए, एक बन गया लेस देन ऑग्यू और दूसरा बन गया मोर देन ऑग्यू। अब लेस देन और मोर देन दोनों एक ही पर, अब जब हम बनाएंगे लेस देन और मोर देन, ये ऐसे बनेगी, लेस देन वाली ऐसे चढ़ेगी, ये ऐसे चढ़ती है, और मोर देन वाली जो है ये यहाँ से वापस आएगी, यहाँ से, ये वाली नहीं है, ये यहाँ से आएगी और यहाँ टच करेगी। इस तरह जब आप वैल्यूज़ देंगे ना,
ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पर देंगे, इसमें लेस देन लगाएंगे और इसमें मोर देन लगाएंगे, तो ये हमें बन जाएगी, ये वाली ओग्यू जो बन जाएगी इसको हम कहते हैं लेस देन एंड मोर देन ओग्यू। इसमें आपको क्या करना है, आसान सा तरीका है, ये वाली पहले बनानी है, फिर ये करो इसके ऊपर डालनी है, ये बन जाएगी इस तरह से, ये एक पॉइंट ई पर टच करेगी, इसको हम कहते हैं ये है लेस देन ओग्यू एंड मोर देन ओग्यू। अब आई थिंक इट इज़ ऑल फॉर टुडे। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़ नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।